Good morning, dear student. Today I will tell you a story. The name of the story, The Three Friends in Lake. It is a very interesting story, so student listen to carefully. First of all, I will tell you the story in English. After that, explain in Hindi. So let's start the In a certain area, there was a lake near the hillside. Many fishes lived in the lake. Three fishes named Clever, Lazy, and Stupid also lived in the lake. They were bosom friends. They played with one another. There was a village at a little distance from the lake. In the village lived many fishermen. One day, the three fishes were playing on the surface of the lake. At the same time, some fishermen were passing along the lake. They saw the three fishes playing in the lake. They decided to come with their nets for fishing in the lake the very next day. Clever heard talking. Clever hardly went to his friends and told them what he had here. He said, "Friends, we have to leave this lake. Some fishermen are planning to catch us. We have to go away to save our lives." But Lazy and Stupid did not agree with him. Lazy said, "I have lived here very long and do not want to go away. Do not worry, we will be safe here." And Stupid said, "Big men have no work except making big plans. Don't worry, nothing will happen to us." Clever became very sad to hear his friends. He insisted his friends to leave the lake, but they did not agree. So he decided to leave the lake alone. He bid them goodbye and went away to another place. Next morning, the fisherman came with his big nets and caught all the fishes in the lake. When Lazy was caught, he lay still. He did not move because he was lazy. Fishermen thought him dead and threw him along the side of the lake. When nobody was looking, he slipped back into the lake. But when Stupid was caught, he went on trying to get out from the net but failed. Fishermen were happy to see him full of life. They got a lot of money by selling him. People also like to buy fresh fish like this. Thus, Clever saved his life by his cleverness. Lazy had narrow escape and Stupid lost his life because of his own stupidity. बच्चों, आज की जो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, इस स्टोरी का नाम है थ्री फ्रेंड्स इन लेक। तीन फ्रेंड्स जो रहते हैं वो लेक में रहते हैं, उनकी ये स्टोरी है। अब इसको हिंदी में मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। थ्री फिश रहती हैं, तीन मछली रहती हैं। उनमें से एक का नाम क्लेवर, दूसरे का लेज़ी और थर्ड का स्टूपिड रहता है। वो तीनों एक झील में रहती हैं, एक साथ वो खेलती हैं उस झील में। एक साथ वो लोग काफ़ी समय से उस झील में रह रही थी और उसी झील के आसपास कुछ फिशरमैन, मछली पकड़ने वाले लोग रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि तीन मछलियाँ लेक में खेल रही हैं। वो उन्हें देख के बहुत खुश हुए। उन लोगों ने प्लान बनाया कि जब वो नेक्स्ट डे आएंगे, दूसरे दिन सुबह आएंगे जाल लेकर के, और वो मछली को क्या करेंगे, वहाँ से पकड़ के ले जाएंगे और उन्हें मार्केट में बेच देंगे। अब ये सब उन फिशरमैन की बातें कौन सुन रही थी? क्लेवर सुन रहा था। तो क्लेवर जो मछली थी वो जा कर के उसने अपनी दो फ्रेंड जो थी, एक का नाम लेज़ी, एक का स्टूपिड, उनको ये बात बताती हैं
कि मैंने सुना है एक फ़िशरमैन ये प्लान बना रहा है कि वो कल आएगा और एक बड़े से जाल को लेकर के और हम तीनों को पकड़ के लेके चला जाएगा। पर उसकी बात को लेज़ी और स्टूपिड दोनों अनसुनी कह देती हैं। वो कहते हैं कि हम तो इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, हमें तो किसी ने पकड़ा ही नहीं, तो ये सब, और उन लोगों के पास कोई काम तो है नहीं, वो बस प्लान बनाएंगे हमें पकड़ने के लिए। तो वो कहते हैं कि हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। क्लेवर मछली जो रहती है वो बहुत समझाती है उनको, बहुत कोशिश करती है कि वो उसके फ्रेंड्स बच जाएं, उनकी बातें मान लें, पर वो लोग उसकी बात सुनते ही नहीं हैं। तो अंत में वो डिसाइड करती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही यहाँ से अकेले चले जाऊँगी। तो फिर वह उन लोगों को गुड बाय बोलती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह क्या होता है, फ़िशरमैन आता है एक बड़ा सा जाल लेकर के, और फिर वो पहले लेज़ी को पकड़ता है। पर लेज़ी का मतलब आलसी होता है। अब आलसी मछली थी तो वो क्या करती है, वो बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं करती है, हिलती डुलती कुछ नहीं है। तो जो फ़िशरमैन रहता है उसको लगता है कि अरे ये तो मरी हुई है, तो मरी मछली को तो कोई मार्केट में बेचा नहीं जा सकता, कोई लेगा नहीं। तो वो क्या करता है, उसको वहीं लेक के किनारे बाहर ही छोड़ देता है। और फिर लेज़ी मछली देखती है कि जब कोई नहीं दिख रहा तो वो धीरे से वापस लेक में, झील में चली जाती है। स्टूपिड मछली जो रहती है उसको वो फिर पकड़ता है। अब स्टूपिड मछली बहुत कोशिश करती है कि वो जाल से बाहर आ जाए, पर वो जाल से बाहर आने में सफल नहीं हो पाती है। फ़िशरमैन देख के बहुत खुश होता है कि चलो कोई बात नहीं, एक मछली तो मैंने पकड़ी। और फिर वो क्या करता है, उसको ले करके बाज़ार में कहता है कि अब मैं इसे बेचूंगा, फ्रेश मछली, तो मुझे इसके बदले पैसे मिलेंगे, और वो उस मछली को पकड़ लेता है। उसके बाद अब इस कहानी से हमें यही होता है कि जो क्लेवर रहती है वो तो अपनी चालाकी से बच जाती है, और जो लेज़ी रहता है, क्योंकि वो लेज़ी मछली थी तो इसलिए वह अपने आलस से बच गई। लेकिन जो स्टूपिड थी वो अपनी स्टूपिडिटी यानी मूर्खता से क्या हुआ, उसको फ़िशरमैन ने पकड़ लिया। और ये जो चैप्टर था, ये स्टोरी थी, वो आपकी इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर से है, लेसन 4। तो अब आपका काम ये है कि आप ध्यान से इसको सुनिएगा, इस स्टोरी को, और उसके बाद फिर बुक रीडिंग करिएगा। ठीक है, ओके।